The fragrance emitting from its narrow lanes and the air of tradition bring out the essence of the ancient city of Kannauj, existence of which can be traced back to the 2nd century BC. Once known as Kannauj, Kannauj finds its mention in the Ramayana, Mahabharata, and the Purans. The heart of the city is gripped by the conspicuous fragrance emerging from the perfumeries of Kannauj that produce its famous Attar or Itr. Attar makers say that the art of fragrance making can be traced to Vedic era, and the word Sugandh finds its mention in the Rig Veda, the oldest Vedic text. While its fragrances have found fondness abroad, including the Middle East and Europe, Attar makers in Kannauj's Bada Bazaar say that the ODOP product lacks marketing and branding despite a geographical identification sign. About 20 kilometers from here is the site of the proposed International Perfume Museum and Park, which former UP CM Akhilesh Yadav envisaged to serve this purpose. The barren land and the mounds of soil set within a boundary wall behind me is the site of the International Perfume Museum and Park, the dream project of former UP CM Akhilesh Yadav, who laid its foundation in district Kannauj, known for its 1,000 years old perfume and Itr industry. While the foundation was laid during the SP regime in April 2016 along the Agra-Lucknow Expressway, perfumers allege that there was no work in the project for over 4 years after the initial identification of 100 acres of land for the project. Perfumers complain that after the government changed, they witnessed a reduction in the land from the initial 100 acres to now a mere 59 acres, while the budget of the project was slashed from rupees 257 crores to rupees 100 crores. However, in November last year, the work of a boundary wall around the project site did start just ahead of the state assembly elections. From a roadside perfume seller to a veteran seller in the showroom, everyone asserts that the Perfume Park project could provide the much-needed boost to Kannauj's perfume industry. हमारे ज़िले का इनाम होगा, बाहर के लोग आएंगे, विदेश से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, घूमने आएंगे, उसके स्टॉल लगेंगे और प्राचीन नगरी है, ये इतिहास की नगरी है, राजा महाराजाओं की नगरी है, ये बताया जाएगा कि कन्नौज में परफ्यूम बनता है। हमारे कन्नौज का सब ऊँचा होगा, शहर का हमारे नाम होगा। परफ्यूम पार्क बनने से मैम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंसान जो टूरिस्ट आते हैं, जो इधर उधर भागते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, वो देखने जाएंगे उस चीज़ को कि अतर कैसे बनता है, अतर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। और अखिलेश जी ने जो ये परफ्यूम पार्क के लिए ज़मीन छोड़ी वो ऐसी पड़ी हुई है। मैं निवेदन करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी से कि आप उसको देखें, प्लीज़ उसको तरफ ध्यान दें। हम नहीं चाहते कि जो न्यू जनरेशन है वो इधर उधर भागे। हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी चीज़ में ही इन्वॉल्व रहेंगे। ये नहीं कि वो नौकरी मिलना नहीं है मैम, ये तो नौकरी तो आप ये सोच लीजिए एक जुमला है, नौकरी नहीं मिलना है। However, Attar makers allege that the work of the project remained stalled for over 4.5 years after the government changed. They complain that while initially a total of 100 acres of land was identified for the project, it witnessed a reduction in land size and budget, and instead of the museum, auditorium, cafeteria, and the manufacturing units as proposed, there is only a boundary wall around the site at present, work on which started just ahead of the assembly elections. खटिया में परफ्यूम पार्क बन रहा है, तो पहले जो मैप बना था तो उसमें ज़्यादा लैंड में इंडस्ट्रियल प्लाट निकाले गए थे, लेकिन अभी जो दोबारा मैप बना है तो उसमें 9 से 10 एकड़ में इंडस्ट्रियल प्लाट लगभग 36 निकाले गए हैं। तो हम लोग व्यापारी लोग चाह रहे थे कि कम से कम 100 प्लाट तो होने चाहिए, और वहाँ पे काम चल रहा है, लेबलिंग भी हो गई है, बाउंड्री वाल भी हो गया है। अब आगे अगली मीटिंग होगी हम लोगों की, तो उसमें 2 इशू आ रहे हैं, एक तो रेट का और दूसरा जो है प्लाट का। तो इंडस्ट्रियल प्लाट जो है बढ़ा के हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार बदलने की वजह से भी ऐसा हुआ है क्योंकि राजनीति हो रही है। जी ऐसा है। अब पिछली बार तो देखिए कोरोना में और भी कई कारण रहे हैं, उसकी वजह से सब डिले हो रहा है।
और जब तक कोई चीज़ बन रही है तो उसको प्रॉपर हर चीज़ को सोच के बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारे हित व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कन्नौज में पतली पतली गलियों में हैं और हित व्यापार जो है एकदम से वहाँ पे पहुँचेगा तो हम लोग इंटरनेशनल लोगों से टच में भी आ जाएंगे। जैसे आगरा से लखनऊ हाईवे पे है ये परफ्यूम पार्क, इसीलिए हम लोग उत्साहित भी हैं कि जल्दी बने और हम लोग वहाँ पे अपना व्यापार शिफ्ट करें। Attar or perfume making is a complex process which currently takes place in traditional karkhanas in the narrow lanes of Kannauj. As one enters a karkhana, where attar is manufactured via the traditional deg papka process, one can see workers drenched in sweat, their eyes rendered reddish due to the high temperature of the place where several furnaces are lit together. ये हिना बन रहा है, ये जड़ी बूटी का इसमें माल पड़ा है जी, और माल पड़ के ये पकता है 3-4 महीने, फिर इसकी खुशबू बसाई जाती है, फिर ये पकाया जाता है। ये लगे हैं बक के, ये लग के अब ये शाम को निकल जाएंगे और फिर वो दूसरे रखे हैं वो डाले जाएंगे। ये ऐसे लौट पटा होता है 3 महीना तक। जो पक गया अभी दोपहर में पक जाएगा, उसका आप क्या करेंगे? फिर वो लगाएंगे दूसरे। उसका जो पक जाएगा उसका क्या करेंगे? वो रखा रहेगा, फिर सवेरे उसमें पानी निकाल लेंगे। पानी इस देग से पानी उसमें भाप जाती है तो पानी उसमें चला जाता है बाल्टी। ये जो सामने देग रखी है जी, इनमें हिना बन के जी, उसमें उसकी भाप निकल के इसमें भपके में इस भपके में आ रही है। उसके बाद में निकाल लेंगे और फिर सवेरे फिर ये दूसरा डालेंगे और फिर वो डालेंगे 3 बजे। ये कितने समय तक चलता रहेगा? ये 2 बजे 2:30 बजे तक चलेगा। नहीं, क्या 2 महीने तक ये सब चलता है? हाँ, ये 2 महीने तक चलता है। उसके बाद अतर बनाने की क्या प्रक्रिया है? वो यहाँ से जाएगा कच्चा माल तो वहाँ पकाया जाएगा भीतर। यहाँ से कच्चा माल माने हाँ, ये पानी कच्चा है, ये पानी जाएगा। हाँ। अच्छा, कहाँ पे जाएगा ये? बोटी जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? पकाया जाएगा, जैसे ये डेग पक रही है जी, ऐसे ही पकाएगा। From the old shamama and henna to the concoction of petals of rose, keuda, bela, mehndi, khas, zafran, motia, and Kannauj's famous mitti attar, all fragrances are produced here. While most of them are produced in the day, some are even prepared through the night. इसमें जड़ी बूटी है जंगल की। अच्छा, उससे क्या होता है? खुशबूदार, इससे जो है खींचते हैं इसमें उबाल के, और ये कलसा लगा हुआ है इसमें टपकता है, ये कलसे में ये टपकता है इसमें खुशबू। बहुत कम निकलता होगा? बहुत कम, बहुत कम। कितना समय लगता है एक शीशी बनाने में, छोटी सी? शीशी बनाने में नहीं, डिराम 25 किलो का बनाते हैं 2 महीने में। The Perfume Park project had envisaged that the interested ones out of the over 350 perfumers of Kannauj can shift their units to the proposed park site along the Agra-Lucknow expressway. देखिए, राजनीति का मसला है, वो क्या वजह है क्या नहीं है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये है कि हो सकता हो उनके शायद अभी वो आगे इस साल कर दें इस चीज़ को, परफ्यूम पार्क को बनाने के लिए हम अनुमति देते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो जल्दी से जल्दी कर दिया क्योंकि ये ज़मीन पड़ी हुई है, उतना वक्त जा रहा है। अगर वक्त अच्छा मिल जाएगा तो आगे की जो जनरेशन जो पढ़ाई कर रही है वो इधर उधर भाग के जॉब कर रही है, कानपुर जा रही है, कानपुर में नौकरी नहीं मिल रही, लखनऊ जा रही है, दिल्ली जा रही है। भाई जब आपके पास चीज़ है उसको आप यूज़ करो ना, जब चीज़ नहीं है तो एक बार चलो ठीक है क्या वहाँ जाए, वहाँ मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, नौकरी भी अच्छी मिल रही है, पेंशन भी अच्छी मिल रही है, तो वो चीज़ें देखना बेकार, हमारे जनरेशन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे कन्नौज का विकास होगा, साथ में हमारे देश का भी होगा और बाहर के लोग भी आएंगे, वो भी देखेंगे। मार्केटिंग में और दूसरी जगहों के जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनको अपने वही है कि बाहर के जो टूरिस्ट आएंगे वो देखेंगे और उससे फेमस और होगा कन्नौज। The Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav targeted the Yogi government for allotting no budget for the perfume park in the recently announced state budget and said that the BJP government didn't like Itr. While government officials admit that the work was stalled in the middle, they claim that it has now started.
देखिए पिछले समाजवादी पार्टी सरकार जाते जाते उन्होंने आखिरी समय में परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा कर दी। अब परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा कर दी, उसके लिए ना तो कोई ज़मीन उन्होंने अलॉट की और ना ही किसी प्रकार की कोई योजना बनाई। तो कोई कुछ कि आखिर उसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फूल कहाँ से वहाँ के ऊपर आएगा, क्योंकि अतर में तो सबसे बेसिक चीज़ वो फूल ही है। तो फूल कहाँ से आएगा, तो इस सब को लेकर कोई भी किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी। एक पूरा केवल एक उसको कहना चाहिए कि एक योजना एक फर्जी टाइप से बना दी। अब हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने लगातार वहाँ के ऊपर ज़मीन अलॉट कराई, फिर उसके बाद में वहाँ के ऊपर उसको जब बनाने का पूरा हम लोगों ने उसकी योजना बनाई। फिर उसके बाद में अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वहाँ के फूलों की खेती से संबंधित लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अलावा उनकी मार्केटिंग के लिए भी कि जो प्रोडक्ट अगर वहाँ के ऊपर बने तो उसकी मार्केटिंग कहाँ हो, तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। The International Perfume Museum and Park can help bring the perfumers of Kannauj under one roof, providing them a place to market their product to tourists and wholesale buyers who can simply drive down the Agra-Lucknow expressway. However, perfumers are particularly upset due to the alleged reduction in the number of industrial plots meant to be allotted to them. Perfumers say that at present, they are only being allotted 38 industrial plots at a rate of rupees 6,000 square feet, which is too steep for them. They want that this process be done at subsidized rates. Government officials, however, say that they need to recover the cost of development of this land from perfumers itself. Meanwhile, the work of the project, which was envisaged as the face of India's perfume industry, continues to be in limbo. In Kannauj, this is Shikha Salaria for ThePrint. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and follow our Twitter and Facebook pages.